के एकदम बड़ा हो गया, मजा आ गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े हो गए। यही था। फैंटास्टिक। आशा जी, जॉनी जी की बेटी जेमी तो बहुत अच्छा करती है, आपकी मिमिक्री करती है ऐसे ऐसे। शी सेड उसको बोलो मेरी मिमिक्री ना करे, मेरे गाने गाए। तुम मुझे परेशान करने लगे हो। Have you seen Murder Mubarak है? Have you seen? No. Oh my God! Hi, I'm Ananya Pandey and I can touch my tongue to my nose. मैं ये कर सकती हूँ। What is your take on privilege? कैरेक्टर आर्टिस्ट के बच्चों को नहीं होता है कुछ, नहीं मिला कोई, नहीं है कोई एडवांटेज। वो सिर्फ ए लिस्टर्स के लिए है, वो सिर्फ बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स के बच्चों के लिए है। So yeah, we also shot with Naveen Kasturia. We shot with. We were supposed to shoot one yesterday, but got postponed for a while. Yeah. But yeah, we were shooting with artists, Nice. creators, Nice. actors, musicians. So yeah, how are you doing? Very good. How was Very your good. last show? अरे मज़ा ही आ गया, है ना? Too good. So I've been doing stand up for, ये सब मैं बोलूँगी उसमें ही। हाँ बताओ ना। शुरू हो गया है क्या? अरे भाई रिकॉर्ड हो रहा है? स्कैम हो गया मेरे साथ? अच्छा, ओह वाओ, आई थॉट आई विल बी लाइक ऐसे। नहीं ये that's it's not that अच्छा, kind of नाइस, show. आई लाइक इट। ओके, सो स्टैंड अप तो मैं 10 साल से कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट गिग वाज स्टैंड अप। Okay. हाँ, द फर्स्ट थिंग आई एवर डिड वाज This स्टैंड was in 2012. 2012. हाँ. So जब when I was studying also at that time, in fact college के time से when I was going to college here also जय हिंद में, I used to do stand up events और मैंने बहुत सारे events जीते भी है। तो stand up was like my first love or the first thing that I ever wanted to do. फिर when I went to London, वहाँ पर also मैंने लिखना शुरू किया था। मुझे आता नहीं था जोक लिखना, but my observations or whatever Okay. I thought was funny, I should just write it down. So my first ever opportunity I got was in London, which my dad gave, which I've told like 100 times that story. But वापस आने के बाद in Mumbai also my first ever thing was stand up, जो मैंने क्लब में करना शुरू किया। तो तब से उसके बाद मैंने टीवी किया है। Which club was this? That Laughter Canvas, which is Canvas now. Canvas Laugh. हाँ. But at that time it was the Comedy Store. So my Yeah. first gig was there, where I remember Tanmay had introduced me. Okay. And मेरा 7 minute का open mic spot था, which they give, you know, for new comics. Yeah. तो मैंने वो वाला spot I've done a 5-minute spot, like I've done a storytelling spot. I've done a nice. poetry spot for. Oh, nice. I was doing this in Canvas Literature Club in Gurgaon. अच्छा, Yeah, and I'd done a spot, and people were like, and I saw like a lot of. I was doing this for the first time, and because I had just started content creation back then. This is 2018 or so. Okay. And I was like, ठीक है चलो, let's try this out as well. And I'd written a poetry piece called Sapne. I'm like, ठीक है, this is an emotional piece, it should work. And I go on stage, and a lot of first-time performers, I wouldn't say gained sympathy, but for the lack of a better word, they gained sympathy. Oh, I'm performing for the first time, and everybody should clap. Oh, yeah. People are really kind like that. And also I think back in the day, because वो culture इतना नया था ना concept कि छोटा सा club है and then people have gathered. It was very new to us. So people were very supportive. So which was nice. And I remember, if now that I look back, वो set मेरा YouTube पर है. My brother uploaded it. I don't know. I think it's called Jamie J. Because back in the day, I used to call myself Jamie J. I didn't want to be known as a lever kid. Okay. I didn't want that pressure. तो मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि मैं नहीं डालूंगी मेरा वो उनका नाम। ऑल्सो मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही थी। लीवर उनकी कहानी है, उन्होंने लीवर क्यों डाला, वो एक कहानी है, there's a बैक स्टोरी टू इट। तो मेरा तो कोई बनता ही नहीं था। तो आई वाज लाइक व्हाई शुड आई कीप दैट लीवर टैग, एंड माय रियल सरनेम इज जनुमाला। Okay. सो आई डिसाइडेड ये जनुमाला तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस लग रहा है। So that's why Jamie J. That's why the J. So I called myself Jamie J, and we uploaded the video on YouTube. My brother forced me to upload it. And he said, "Nahi, tu dal." And then we named it as Jamie J Comedy, stand-up comedy at the Comedy Store. Yeah. And that was the title for it. And this, I remember the manager over there, the local manager at the Comedy Store. She was not Indian, she's French or something. So she asked me my name, and I said Jamie Janumala. So she said, no, Janumala is too complicated. I can't even say it right. So वैसे Jamie J हो गया. But what's the liver story? For my dad. Yeah.
बिकॉज ही वर्कड एट हिंदुस्तान लीवर एंड ही इज़ टू एवरी ईयर आई थिंक उनका कुछ एनुअल प्रोग्राम होता था जहाँ पर वो परफॉर्म करते थे और सबकी मिमिक्री करते थे और सबकी खिंचाई करते थे. सो पीपल टू लव वॉचिंग हिम एंड ही वॉज अ नॉर्मल लेबरर एट द कंपनी. तो सारे वो यूनियन का जो होता है ना एक गैदरिंग होता था. सो ही इज़ टू परफॉर्म ओवर देयर एंड पीपल लव्ड हिम एंड इज़ टू बी लाइक अरे जॉनी 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 तू कर, जॉनी तू परफॉर्म कर, जॉनी तू ये कर. तो एक But दिन Johnny is his real name his or real name is John. John, बट okay. प्यार से जॉन जॉनी. Okay. Okay. तो वैसे आई थिंक एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने मतलब सबकी ऐसी मिमिक्री कर डाली कंपनी के सारे हेड्स और हाँ, जो उनके हाँ. मैनेजर्स थे, जो उनके सीनियर्स थे, उनकी सबकी मतलब ऐसे मिमिक्री और खिंचाई कर डाली दैट दे वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम. दे सेड आई थिंक द एक्चुअल थिंग वाज कि कोई उनका सीनियर आया स्टेज पर एंड अवॉर्डेड हिम या ऑनर्ड हिम एंड उन्होंने बोला कि तूने आज लीवर की कर डाली तो आज से तेरा नाम जॉनी लीवर. एंड दैट बिकेम सच अ कैची नेम फॉर हिम कि ही रियलाइज कि यार ये अच्छा है, let's just keep this. And instead of having John Rao Janumala, which can you imagine, you can't even JRJ. you can't even put my father's face with that name. It doesn't go together. Now I can't just है ना? picture No. Johnny sir with Yeah, this with that like, serious name. yeah. So he decided to keep that name, and that's how it happened. So अब इतना उनकी बैक स्टोरी है. There's a reason why he put that name. You know why he calls himself Johnny Lever. I have nothing to do with that. What do you call yourself? What do you like to be initially called? I did want to be called Jamie J only. Because Janumala is my surname and I was like ये बराबर है, J तक मैं रख सकती हूँ. लेकिन when I started doing TV, I was doing comedy circus and they asked me आपका क्या नाम डालें हम. तो मैंने बोला आप जेमी जे डालिए. तो they said नहीं जेमी जे नहीं है, जे क्या है, हम जेमी लीवर डालेंगे. I said नहीं but आप क्यों डालेंगे. I said नहीं because आप जॉन लीवर की बेटी हैं ना, हमको तो लीवर ही डालना है भाई, हमको समझ में नहीं आएगा वरना. एंड द फर्स्ट डे आई वेंट टू वर्क आई रिमेंबर आई एम सीइंग माई वैनिटी वैन एंड वैनिटी के बाहर उन्होंने बाकायदा जेमी लीवर का टैग डाला था एंड उस दिन से फिर वो चिपक ही गया. एंड आई कुडंट you know say But no did you- to it, backtrack. But did you feel like not having the name? Did you feel like कि नहीं यार, I don't want this name, I don't want the हाँ tag? बिल्कुल, I didn't want it because instantly I felt the pressure. Before that I felt like yeah I'm my own identity, मुझे खुद का भी कुछ बनाना है, Yeah. खुद की identity create करनी है. Nobody knows and nobody needs to know. You know, let me just do this stuff on my own and people should know me for what I can do. बट जब वो लीवर अटैच हो गया ना, फिर वो एक्सपेक्टेशंस, फिर जजमेंट, फिर वो सारी चीज़ें आने लगी विच आई न्यू was going to happen. But I'm gonna ask you a question that I'm sure you must be asked a million times. And this I'm going like out of my way because we don't do that. We don't Yeah. do like we don't repeat conversations. Yeah. But I want this question to be repeated on my show. Okay. Just for record. Okay. Why is there, or have you taken, I'm sure there is pressure when it comes to, or is there any pressure, let's just put it, why do I assume नहीं, प्रेशर तो है. pressure in terms of using or being Johnny Lever's daughter? Yeah, pressure to hai because see, firstly, this man has never disappointed anyone when he's come on screen. Every time he's appeared on the screen, people are just, they smile, they laugh, they have this sense of this joy, this happy feeling, and ये सारी चीज़ें attached हैं with Johnny Lever. And time and again he is just मतलब one up करते गए खुद, मतलब he is just bettered himself. तो being his daughter, जाहिर है कोई यही सोचेगा अरे जॉनी लीवर की बेटी है, ये तो कुछ तोप ही होगी, कुछ तो होगी, मतलब कुछ टैलेंट होगा. बाप के कण आएंगे ज़रूर, बाप का टैलेंट आएगा, वो कॉमेडी कर पाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब ये मान के ही चलते हैं लोग कि ये सब चीज़ें आनी हैं. तो आप इमेजिन कीजिए, आई ऑलवेज से दिस लाइक फॉर अदर पीपल शायद नॉर्मल जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए तो ज़ीरो से स्टार्ट करें. फॉर मी आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ 10. यू नो माई फादर्स फ्लोर इज़ माई सीलिंग, तो मुझे वहाँ से शुरुआत करनी है. तो इमेजिन कितना हार्ड वर्क. एंड ग्रोइंग अप आई डेंट नो कि ये सब होगा मेरे साथ. इनफैक्ट तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये करना है. अब जब मैं लाइन में आ गई हूँ देन आई रियलाइज अरे there's a lot of pressure. I can't just go in and just do anything. And my parents, my father especially, made sure that I realize कि ये होने वाला है. People will expect a lot from you. तो तुम भाई
you know, full तैयारी में ही जाओ. So it was very strict at home with me when I was training or when I was in my just initial years, जब कॉमेडी सर्कस में जा रही थी या स्टैंड अप भी कर रही थी, तो they were very hard on me. My dad, my uncle, both are my mentors. My uncle more, because my dad didn't have the time and he doesn't have the patience to train anybody. But my uncle, उन्होंने मुझे ना एक एक वर्ड बोलना सिखाया है. So they were very very tough on me. मैंने रोते रोते जोक सुनाए उनको, क्योंकि इतना मतलब प्रेशर. एंड my dad told me one thing. He said, तुम कर रही हो ना ये, तुम सिंसियरली करो. हाँ, तुम 100% दोगी और यू गोइंग टू बी द बेस्ट. अदरवाइज मत करो, छोड़ दो. तुमसे प्रेशर नहीं हैंडल होता तो छोड़ दो. एंड ही इज़ सुपर स्ट्रिक्ट लाइक दैट. ही इज़ वेरी मतलब बिल्कुल हाँ, इन द फेस, ब्लंट, कि ये है, नहीं होता तो छोड़ दो. ये सब नॉनसेंस नहीं चाहिए मुझे, टाइम पास नहीं चाहिए. तुमने अगर लिया है पंगा तो फिर मतलब फुल उतर ही जाओ मैदान में. So it was tough, and they made sure I realized that, because he knew कि once I'm in the public eye, then I'm exposed to judgment. I'm exposed to people saying anything. You know, कुछ भी, they will thrash you. And now तो कितना easy हो गया है यार, एक वीडियो डालो आपको ट्रोल्स आ जाते हैं, आपके नेगेटिव कमेंट्स आते हैं. बट टच वुड फॉर मी, नॉट इन माई केस. लाइक आई एम रियली ब्लेस्ड कि पीपल अप्रिशिएट एंड दे लव मी फॉर व्हाट आई डू. लेकिन ये होता है विथ एनीबडी इन द पब्लिक आई. You're at the public's disposal, so ये होना ही है. तो हाँ, तो difficult है, pressure था. But now, like how have things changed now? I think वो हमने बहुत तैयारी की. Like I worked really hard. I had singing classes, dancing classes, I had Urdu classes, Hindi classes, because diction अच्छा होना चाहिए. और I went to a school जहाँ पर हिंदी बोलना allowed नहीं है. तो हमने तो मतलब इंग्लिश ही बोलते थे हम लोग. जमनाबाई आर्ट्स स्कूल, यू नो, वाज उस टाइम का धीरूभाई अंबानी स्कूल. यू नो, उस टाइम के सारे सेलिब्रिटी के बच्चे वहाँ जाते थे. सो एवरीबडी वाज वेरी लाइक, यू नो, एक बार कुछ तो कर दो आप, ऐसे कुछ तो हो जाए. वो स्कूल का लाइक टिपिकल स्टूडेंट. या बट सब बड़े स्टाइल में बात करते हैं. लाइक या माय डैड जस्ट गॉट मी दिस, या यू नो, अनन्या पांडे स्टाइल ऐसे हम बात करते थे. यू नो, या आई ओनली वेयर लाइक कीटो शूज, एंड कुछ कीटो शूज कुछ होता था फेमस उस टाइम का. I only wear those shoes, and my pinafore has to be this short, and like my shirt has to be this much, and ऐसे सब होता था यार. And so you know, that was the circle, that was the environment, and everybody was privileged, and all these rich kids went to that school. So we were strict instructions, हिंदी नहीं बात करनी है आपको. तो मेरी हिंदी इतनी ठीक नहीं थी, and my dad was very particular, अगर तुम इस लाइन में आ रहे हो तो तुमको बोलना आना चाहिए यार, and with ease. ये नहीं कि तुम की में गड़बड़ कर रही हो, यू नो. तो एंड उर्दू क्लासेस, ही वाज लाइक, नहीं, तुमको उर्दू बोलना आना चाहिए. हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है. उर्दू इसे नहीं, क्योंकि डिक्शन चाहिए. ओह, या ओके, तलफ़ुज़ साफ होने चाहिए. अच्छा, यू नो. तो ही वाज वेरी पर्टिकुलर, एंड ही सेड, कभी तुम कुछ होस्ट कर रही हो और तुमने उर्दू में एक शायरी बोल दी या कुछ शेर बोल दिया तो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे. तो उनका ऐसा था कि उतनी तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए. तुम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ कर लो. तो कितने सारे डांस क्लासेस में गई हूँ मैं. जैज़ सीखा है, थोड़ा बहुत बेली डांसिंग सीखी है, बचपन से भरतनाट्यम सीखा हुआ है. तो ये सारी ट्रेनिंग, फिर मैंने इंडियन क्लासिकल में मेरी ट्रेनिंग हुई है. और अगर आप सोचेंगे कॉमेडी के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत हैं अभी कि नहीं, इज़ इट इम्पॉर्टेंट? नो. बट एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू नाउ, जो मैं कर रही हूँ ना, वो सारा जो मेरी जो ट्रेनिंग है, एवरीथिंग इज कमिंग टू यूज राइट नाउ विद आशा जीज मिमिक्री ऑल्सो. अब लोग मुझे मिमिक करते हुए देखते हैं एंड दे थिंक आई इज जस्ट मिमिक्री, बट मैं गाती हूँ उनकी तरह, मैं सुर में गाती हूँ. अब आ जाओ, अब आ जाओ, एक बार आ जाओ. अब आपने तार छेड़ ही दिया है तो एक बार आ जाओ. या लाइक व्हाई आई डिड इट टू माय सेल्फ. आ जाओ प्लीज. व्हाट डू यू वांट मी टू सिंग? What is your favorite Asha Bhosle song? So this one, मेरा कुछ सामान is something that I really love that song. आ जाओ. और अब ये गाना मैं इतनी बार गाया है ना, but I can't sing it normally. Normally मतलब ये आशा जी का गाना, उनकी आवाज में ही गा सकती हूँ. You can't sing it like in your voice. नहीं, होता नहीं है. मैं कोशिश कर चुकी हूँ पर आता ही नहीं है. मतलब वो इतना प्यारा वो लगता ही नहीं. बड़ा सिंगर. ठीक है, आ जाओ. मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ओ सावन के कुछ मीठे, नहीं बोल मेरे गड़बड़ हो गए. सावन के गाना ना ना
रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन. हालांकि मैंने लिरिक्स गड़बड़ कर दिए, सो प्लीज गाइस. That is Be okay. easy That on is me. absolutely fine. You don't have haters. You have a good community. Thank God. Yeah, touch wood. Thank God. But how long did you take to pick up on Asha ji's voice? So when I was, I'm a 90s kid. Do you think this is a good question for a podcast host to ask? हाँ, you can ask. I mean, लगता है Question किसी सही है को ना? कि हाँ, Boring सही है. question नहीं है ना? नहीं. सही है, नहीं, ठीक. क्योंकि टाइम लगता है. हाँ. But for me, I think I had naturally just, I didn't realize कि मेरे पास ये knack था. वॉइस पिकअप करने का या मैनरिज्म्स पिकअप करने का, बट ये मेरे पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि मैं कर रही थी बड़े So do you sorry to cut you here. No, it's So do okay. you watch the artist himself or herself? I do. Or do you watch other mimicry artists doing? I'll tell you that also. हाँ. So there are two ways of doing it. अगर आपको मिमिक्री फटाक से सीखनी है ना, तो आप किसी मिमिक्री आर्टिस्ट का देख लो. Okay. क्योंकि उन्होंने जो पकड़ लिया ना, वो पकड़ना बहुत आसान हो जाता है. उनका बहुत एग्जैजरेटेड वर्जन होता है. Clearly, Correct, just correct, for correct, हाँ. just to make people laugh. तो हम लोग ज़्यादा एग्जैजरेट करके करते हैं. तो अगर आशा जी ऐसी हैं, तो मैं ऐसे कर दूंगी, थोड़ा एग्जैजरेट. There is a reason for it. Right. You're trying to create humor and it's fine, you know. So yes, if you want to pick it up easily, तो मैंने किया भी हुआ है ये. जैसे when I was doing comedy circus, I didn't know how to mimic my dad. मुझे नहीं आता था. मैंने मेरे डैड का बहुत अलग वर्जन देखा है घर पे. ही इज नॉट ऑलवेज बाबा ये ऐसा थोड़ी करते ना. तो अब मुझे Imagine. हाँ सोच यार. तो इमेजिन कॉमेडी सर्कस पे मुझे मेरे डायरेक्टर ने बोला, जेमी फर्स्ट एपिसोड वी वांटेड टू मिमिक जॉनी सर. ऐसा सर मेरे को तो आता नहीं है. सर ऐसे थोड़ी होता है, तुमको तो आना चाहिए. ऐसा नहीं सर नहीं आता. तो मेरे ही टीम में आई हैड मंत्रा एंड आई हैड मुबीन भाई. एंड मुबीन सौदागर इज़ अ रियली गुड मिमिक्री आर्टिस्ट. वो कुछ 400-500 लोगों की मिमिक्री करते हैं. तो ही सर जेमी डोंट वरी, मैं तुमको सिखा रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे सिखाया. ही सर जो भी कह रही हो उससे पहले करो या ये सब करो. सो ही टॉट मी ऑल दीज थिंग्स. This is very interesting. तो इट वाज वेरी इजी टू पिक अप. एंड देन आई वुड जस्ट, वो एक लाइन बोलते थे, मैं उसको इमीडिएटली 1 सेकंड बाद रिपीट करती थी, जस्ट सो दैट यू नो जो सुनने में आ रहा है मैं वो रिपीट कर पाऊँ. एंड दैट्स हाउ. But how do you okay, this is very interesting. How do you pick these little nuggets? जैसे मान लो आपने एक लाइन सीख लिया, ठीक है. अब उसके बाद दूसरी लाइन को एक अलग तरीके से बोलनी है. हाँ, बिकॉज अभी आपने वो सुर आ गया ना दिमाग में. एंड ऑल्सो आई थिंक म्यूजिक ऑल्सो हेल्प्स अ लिटिल बिट. अगर आपको समझ में आ गया है कि जैसे बाबा, तो बाकी की लाइन भी वैसी वो. अच्छा. यू सी, But it's the same tempo. Like इट्स it's द the same. सेम टेम्पो. द पॉजेज आर द सेम. उसमें कोई भी लाइनें आपने डाल दी यहाँ वहाँ. Oh. तो ये फराह जी का ओ गॉड यार चल तू क्या कर रही है, सी हाउ सिंग सॉन्ग इट इज. तो वो सारी लाइनें उसमें डाल दी मैंने. चल मैं भी जा रही हूँ, मैं बिरयानी बना रही हूँ. चल मैं थोड़ी घर में बैठने हूँ, मुझे डांस सिखाना है लोगों को यार. सी द टोन, द यू सी हाउ इट इज, द रिदम, द पॉजेज आर द सेम. आपने लाइनें घुमा दी यहाँ वहाँ. तो एक बार आपने वो पकड़ लिया ना, फिर उसके बाद आप खेल सकते हो उसमें. But how long does it take? Like और इसका क्या है? Like इसका what's the breakdown? Like नहीं in है terms ऐसा of कुछ. कि ये expression पकड़ना है हाँ, या बहुत सारी चीजें. voice, like what's involved? What's the process like? There's voice of course. आपको उसका जो टोन है, वॉइस पे थोड़ा सा और इसका डीप डाउन tone. जाओ हाँ, कि इन टर्म्स ऑफ वॉइस ऑल्सो कि वॉइस पे भी आप कैसे, हाउ डू यू ब्रेक डाउन, हाउ डू यू गो डीप इन टर्म्स ऑफ पिकिंग अ वॉइस, बिकॉज यू हैव योर वॉइस, Yeah. दिस इज माई वॉइस, Yeah. बट व्हेन आई हैव टू पिक ऑन समबडीज वॉइस आई हैव टू बी क्या कर रहे हो यार. yeah, I mean सीना फराह जी का naturally it's more bass ओके, and there is a little bit of husk and reverb to it. राइट. तो वो I think it's a little technical, but चल यार you have to speak नीचे से and this is I'm speaking in the high tone. This is my natural voice, which is a bit higher. Yeah. But for Farah ji, you have to go down. You understand? I'm going down, like walking down the steps. Yeah. Literally that. And then आशा जी का मुझे ऊंचा जाना पड़ता है. मैं देखो इतना ऊंचा है आशा जी का, और मैं यहाँ हूँ और यहाँ फराह जी है.
You see the levels. Yeah. तो आपको हर आर्टिस्ट का देखना है कौन सा पिच है. सो आशा जी का हाई, इवन कंगना भी बहुत हाई बोलती हैं. अगर आप देखिए कंगना रनौत भी ऐसे ही बात करती है ना, तो वो ऊंचा हो गया. फिर सोनम इज ऑल्सो हाई. हाई गाइस, इट्स लिटिल बिट नेजल. हाई, आई एम सोनम. सो इट्स अ बिट नेजल. तो अभी मैंने पिच भी हाई कर दी, बट एट द सेम टाइम मैंने थोड़ा नाक से भी बोलना शुरू किया. तो you see how it changes. This is hilarious. This is There is technique to it. There's a lot there of is- technique to it. अब उसके ऊपर ये आपने कर दिया वॉइस. अगर वॉइस आपने नेल कर दिया, हाफ बैटल डन. पर उस कैरेक्टर आपको जिंदा करना है. उस कैरेक्टर को आपको जिंदा करना है ऑडियंस के सामने. तो उसकी आत्मा तो आनी चाहिए ना. correct. You have to bring it. My dad says it's रूह कब्जा, Roo kabza. नॉट रूह अफ़ज़ा, रूह कब्जा. तो रूह को कब्जा करना है. तो यू हैव टू ब्रिंग दैट पर्सन इन योर बॉडी, राइट. सो फर्स्ट आपने अगर ये आपने अच्छा किया अभी. हाँ, ये ऐसे आ गया. अब किसी ने मुझे बोला कि अगर सुमित शिंदे इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट Wonderful guy. आर्टिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट. सुमित भाई हैज वर्कड विद अस अ लॉट. ही इज डन अ लॉट ऑफ आवर शोज. तो ही सेड वन टेक्निक कि अगर आप उस आर्टिस्ट का ये एरिया, माउथ एरिया, अगर वो आप मिमिक कर सकते हैं तो और इजी हो जाती है मिमिक्री. Oh. हाँ. So give me an example. तो अभी जैसे फरा थोड़ा सा लिस्प है और होठ भारी हो जाते हैं, तो ऐसे होता है थोड़ा सा. सो ही सेज इफ यू डू दैट देन इट्स इजी टू गेट इनटू फरा. ना आशा जी, फॉर मी इट्स व्हेन आई डू दिस, आई गेट इनटू आशा जी कैरेक्टर. सो इट इज़ ईजी फॉर मी. सो गेट हाउ द माउथ मूव्स, दैट इज़ अनदर थिंग, पार्ट 2. फिर उसके ऊपर हाथ, बॉडी. अभी आशा जी के मैं हाथ बहुत ऑब्जर्व करती हूँ उनका, बिकॉज वो गाती हैं ना, तो सिंगर्स हाथ बहुत घुमाते हैं इस तरह से. सो मैंने ये भी ऐड कर दिया. जैसे आई वॉज डूइंग आशा जीज मिमिक्री ऑन कपिल शर्मा शो, एंड सुनिधि दी, आई कॉल्ड सुनिधि चौहान, शी वॉज सिटिंग देयर एंड शी सेड, जेमी तुमने हाथ क्या पकड़ा है यार. वो एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने डाली, बिकॉज वो बहुत ग्रेसफुली हाथ ऐसे करती हैं, गाती हैं. हाँ, और वो एक ब्रेसलेट पहनती हैं. So you do that also. हाँ, मैं वो ऐड कर देती हूँ. तो वो एक बॉडी लैंग्वेज आ गई, फेस, मैनरिज्म्स, फिर आइज, फिर वॉइस. सो देयर आर सो मेनी पार्ट्स टू जस्ट मिमिक्री. लोगों को लगती है बहुत आसान है यार, नहीं, बहुत डिफिकल्ट है. Sumedh had done like a series of mimicries where he was doing an interview with Yashraj Mukhate had interviewed So they Sumedh. did a whole breakdown of how he gets into and it. it's crazy. I Like think उनका तो और भी ज़्यादा टेक्निकल है, because he does proper dubbing. and then he did Kartik Aaryan. And he did that, and then he went to Ajay Devgan, and they went to like a couple of other people, which is hilarious. I had sent you a DM. Oh. Which I have missed clearly. This was this was you have missed, but this was I think a couple of years back. This was in 2020. Okay. During COVID. हाँ. Yeah. So I was just getting started. Yeah. I was sort of ठीक है चलो did ask for a collab, is it? Yeah, I asked for an Instagram live session together. Okay. I was doing Instagram live sessions together. Oh, sweet. It was called Getting Candid. Again, very similar to what I'm doing right now. Yep. Right? So it was called Getting Candid, and I thought ki, hey Jamie, I love your work. I'd love to have you on the show. Yeah. This is what the show's about. Yeah. This is the kind of people we've hosted. I just want 30 minutes of your time if you're free. And then what happened? And you didn't see the message. Ouch. And I've been waiting for a reply. Ay, yaar, I'm so sorry. But then this comes full circle. Yeah. Where we now We're have here you on the Chill in Hour. person. Yeah. Yeah, which is so much better, no? That's so much better. Yeah. But that's not your defense, no? नहीं, I think ये होना था लाइफ में ना, इसीलिए मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया. Absolutely. In your defense. In my defense. But I'm really happy to host you on the show. Yeah, I'm happy to be here. It's probably one of the episodes that we were looking forward to. Oh. We were like, we'll sometime host Jamie, and it's been Awesome. like a good 30 minutes so far. Awesome. I want to pick your brains on comedy. Yep. In terms of observational comedy, in terms of when you're starting off, you were writing your observations, right? Yeah. Now, there are two kinds of funny in my head. So there's funny on stage versus funny in the head. Yeah. Now, I think it's great. It's a great set. It's funny. I try it out in front of, say, like 5 people standing here, sitting here. I'm like, hey, I have a joke. I have a set. Listen to this. Yeah. They try it out. They listen to it.
Like, okay. Do you listen to their feedback? Yeah. Do you listen to the comedians' feedback? Because they know what the craft is. Yeah. They are the audience members. So they will not be able to probably give you feedback, but they'll be able to tell you, okay, hey, this is not funny. Change it. So who do you listen to? How do you hone the craft? And funny in the head versus funny on stage. How do you sort of bridge this gap? Yeah. So, yes, there are a lot of things that you might even, in your head, you might find it really, really funny and Yeah. you might even laugh while thinking over it. But, yeah, कई बार आप स्टेज पे वही चीज़ करते हो और बहुत बुरी तरह से बॉम्ब होता है, जो हो चुका है मेरे साथ भी. जो जैसे earlier when I was doing those club shows, comedy store canvas वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें मैं सोच कर गई थी कि यार ये तो मतलब मैं किल ही कर किल दूँगी. होगा, हाँ. और एक बार मैंने किया था, 1-2 शोज़ मैंने किए थे जहाँ बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, और ये मतलब सोचा मैंने दिमाग में कि ये करूँगी मैं, मतलब. Do you have a type of comedy you do? Mine Like, is very I love doing characters. So if I'm talking about a beauty parlor, let's say, so I'll create the whole picture in front of you. Okay. ये लेडी आई और फिर वो बैठ गई और फिर वो लेडी आई पीछे से, वो पार्लर वाली, हाँ मैडम आपको क्या करना है. यू सी हाउ 2 कैरेक्टर्स बन गए. This is where mimicry also comes into picture. Mimicry comes, characters come, and this is our style of comedy. Maybe not normal stand-up comedians these days. They don't Yeah. do it like that. They stand and tell you a joke straight. Right. But this is the Johnny Liver के खानदान के घराने के comedy, which is हम कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, तो विजुअल आपके सामने आ जाता है. अरे पिक्चर बन गया. हाँ मैं पार्लर में पहुंच गई. हाँ वो पार्लर वाली आई, उसने क्या बोला, हाँ मैडम आपका नहीं, एक्चुअली आपने लास्ट टाइम का भी कलर कराया था, बहुत ज़्यादा लंबा, इधर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया. नहीं आपको करना पड़ेगा मैडम. तो वो लेडी बोलती है यार मैं तो पार्लर में अपना बाल ठीक करने, ये तो मेरा ही कॉन्फिडेंस कम कर रही है. आई एम सेइंग कि ऐसा हमने सिनारियो एक दिमाग में सोचा. Correct. तो मेरा बहुत वैसे होता है, क्रिएट करो उसका, Right. कैरेक्टर्स क्रिएट करो, विजुअल क्रिएट करो, एंड देन फिर एक पंच लाइन होता है, एक जोक बनता है एट द एंड ऑफ द डे. तो लाइक आई वाज सेइंग व्हेन आई वेंट टू द क्लब्स, तो मैंने एक आध सिचुएशन सोच लिए थे एंड आई थॉट इट इज़ टू फनी. मैंने किया और ना उसका सेटअप मैंने बराबर बांधा, ना प्रेमिस था, no premise, ना no बॉडी, punchline, ना नो, yeah. एंड पंचलाइन भी ऐसे मतलब फिजल आउट हो गया. एंड जहाँ मैंने सोचा था कि रिस्पॉन्स आएगा वहाँ रिस्पॉन्स आया नहीं, एंड आई वॉज वेरी वेरी बम्ड, और मेरी हूटिंग भी हुई. तो उस टाइम पे देन माई अंकल वॉज सीटेड इन द ऑडियंस एंड ही डिडंट टेल मी ही वाज कमिंग टू वॉच दैट शो. Oh. Yeah, he just And came. lights are dimmed in the हाँ, audience. तो मुझे I'm पता ही नहीं assuming, था, so पता ऑडियंस तो नहीं थी. हाँ. एंड दिस वाज जस्ट अर्ली इयर्स, जस्ट Yeah. स्टार्टिंग ऑफ. तो उस टाइम पे आपको लगता है आप यार फनी हो, हाँ. है ना, क्योंकि आपका रॉ टैलेंट होता है. आपको लगता है मैं तो यार मैं तो मजा आएगा, मैं bro. मेरे फ्रेंड्स को सुनाता हूँ, लोग तो हंसते हैं और जाग किल कर दूंगा. नहीं होता है ऐसा. Yeah. स्टेज इज़ वेरी डिफरेंट. आपको आपकी प्रेजेंटेशन लगती है वहाँ पर, तैयारी लगती है. लोग वहाँ पर क्राउड वर्क भी करते हैं ना, उसका भी सोच कर आते हैं. The comedians who do crowd work, they've thought of 10 other different scenarios in their head and they're prepared. अगर ये IT वाला है तो मैं ये बोलूँगा, सोशल मीडिया वाला है तो बोलूँगा कि हाँ तू तो कुछ करता ही नहीं है ना. हाँ. तो ये सब So what else सोची do you हुई do to चीज़ें earn? हैं. मतलब what else do you do to earn? Like if you're in social हाँ media. सोशल मीडिया, हाँ वो तो छोड़, अभी करता क्या है, काम क्या करता है. हाँ. यू नो ये सारी चीज़ें लोग सोच कर जाते हैं, प्रेप लगती है, उसकी तैयारी होती है. तो जब माई अंकल सॉ मी, उन्होंने मुझे आड़े में लिया, इसे बेटा तू घर आ. इसे ये ऐसे नहीं होता है, हाँ. ऐसे नहीं होता है. तूने देख लिया रिजल्ट, इट वॉज फनी इन योर हेड, यू सॉ द रिजल्ट, पीपल वर हूटिंग एंड यू बॉम्ब्ड बैडली. What did they say? They hated you. Okay, it's not how it works. You sit with other comics, brainstorm करो. तुम, and especially when you're starting off, you sit, you discuss your jokes with the experts. They will say, नहीं ये ठीक नहीं, इसको ऊपर ले, इसको नीचे ले, इसको ऐसा edit कर. My first time where I performed on stage, I had jokes. This was I performed मेरे डैड के शो पर. एंड मैंने उनको सुनाया 10-12 चीज़ें जो मैंने तैयार की थी. तो उन्होंने बस बैठ के एडिट किया, नहीं ये जोक लास्ट में आना चाहिए, ये भारी है, इसको लास्ट में करो, और ये इसको हटा दो, ये हल्का है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड्स हटा दो, एक्स्ट्रा लाइनें हटा दो. किसी के पास टाइम नहीं है वेट करे कि तुम पंच लाइन पर आओगी, इसके पहले 4 लाइंस आ रही हैं, क्यों बिल्डअप, क्यों फिजूल में. इट्स वेरी टेक्निकल अगर देखा जाए तो. सो यू हैव टू सिट विथ योर फ्रेंड्स हु आर कॉमिक्स. दे विल गिव यू उनके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग आपको बताएंगे कि ये ठीक है, वो ठीक है. तो वो ज़रूरी है. एंड एट द सेम टाइम एक ट्रायल शो करना भी ज़रूरी है, बिकॉज आपको तो सर्व करना है ऑडियंस को. करेक्ट. तो दे आर किंग. अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर और क्या. But if you are not, say, a headliner artist,
can you still do a trial show? I think there are so many places जहाँ पर spots available है ना. बहुत Lots of सारे, places like I think Habitat Habitat है है, और J One Spot Nest है, है. Zoom है, One Nest है, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आप 5 minutes कर सकते हो. And that is a great place to try out your material. It's a really great place because Right. you know where you stand. Reality check मिल जाता है आपको. And then at the same time जो चीज़ें आपको लगती है चलने वाली है, you get a, आपको पता चल रहा है, approval मिल जाता है. Reality check and approval. तो you know okay this is working and this is not working, so that is important. So now for my stand up shows अब जो मैं कर रही हूँ जिसमें मैं 2 घंटे परफॉर्म करती हूँ, जो मैंने लाइफ में कभी 2 घंटे परफॉर्म नहीं किया पहले. I'm doing a show where I perform for 2 hours straight and I did 2 trial shows before that because imagine अगर आप 2 You're घंटे का performing show in Bombay on 24th. I'm next doing on the month. 20th of April. 20th of April. Yes. We've done now 4 shows so far. अभी ये मेरा 5th होगा. And which cities have you covered? No, I'm only doing Only Bombay, Bombay, at the moment. Okay. क्योंकि भी धीरे धीरे it will go out. But yes, I'm doing shows abroad also at the same time. Okay. मेरा Hong Kong show है next month and then London भी show है. तो वो सब चल ही रहा है but ये जो 1 woman show है 2 घंटे का वो मुंबई से स्टार्ट है. तो अब इसको करने से पहले मैंने 2 ट्रायल शोज रखे थे. एक 50 की ऑडियंस थी और एक 100 लोगों की ऑडियंस थी और हमने सारा ऑब्वियसली नया इतना बड़ा शो है तो मटेरियल नया ही होगा. तो वो जो मेरा 1.5 घंटे का या 1 घंटे का न्यू कंटेंट था वो सब ट्राई आउट करना था. अब मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा सकती कि मैं 10 साल कर चुकी हूँ तो मैं तो अभी कुछ भी कर सकती हूँ. नहीं, every show is starts from new zero. It's show, a new yeah. show. Somebody told me every show is a 1 day match. Every show is a 1 day match because audience is different. लोग अलग हैं, लोगों का मूड अलग है. Achha, audience. I've picked brains of comedians before, Yeah. and they've told me that once they're touring with their show, Yeah. say they've covered India and say India की बात करते हैं, so Yeah. they're touring India with their stand-up special or whatever. Yeah. मान लो बॉम्बे किया, फिर दिल्ली किया, फिर कलकत्ता किया, फिर हैदराबाद किया, फिर चेन्नई किया. अब ये 5 cities किए. अब ये 5 cities के कैरेक्टर और ऑडियंस कैरेक्टर इतनी डिफरेंट है, yes. so that show also takes shape. एब्सोल्युटली 100%. कुछ चीज़ें जो मुंबई में चलती हैं वो शायद दिल्ली में नहीं चलेंगी या कोलकाता में नहीं चलेगी. कोलकाता इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, हैदराबाद इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. आपका जो बहुत ही हिंदी वाला कॉमेडी विल नॉट वर्क देयर. यू प्रॉब्ली हैव टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश. आपका स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मैनरिज्म आपका चेंज करना पड़ेगा, कंटेंट ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा जो उस ऑडियंस को केटर करेगा. तो आप गुजरात जाओगे, वहाँ हमारी प्रॉपर गुजराती ऑडियंस, तो आपको तो गुजराती लोगों के लिए वो खाना तो देना पड़ेगा, ढोकला फाफड़ा देना पड़ेगा यार, वरना नहीं जाएंगे आपके जोक्स. But do you use say something in their language or I do. What do you do? Yeah, so now I do a lot of I do a lot of characters. और मेरे sketches में मेरे set में थोड़ी बहुत सिंगिंग भी होती है. Yes. बट ह्यूमरस वे में, नॉट लाइक ऐसे गायकी, बट फनी वे में गायकी. तो जैसे अगर मैं गुजरात चली गई तो एक गुजराती सॉन्ग होगा मेरे एज अ पार्ट ऑफ माई एक्ट. Right. अगर मैं दिल्ली चली गई तो एक पंजाबी सॉन्ग होगा, कोलकाता चली गई तो एक बंगाली सॉन्ग होगा, साउथ गई तो वहाँ तमिल सॉन्ग होगा, महाराष्ट्र में कहीं कर रही हूँ तो मराठी सॉन्ग होगा. सो आई ट्वीक इट अ लिटिल So this is necessary as per context. yes मतलब yes and थोड़ा to cater ज़रूरी to है. that audience and Right. they feel that instant connect. अरे यार हमारा वाला किया उसने, हाँ. हमारा वाला उसने. और या फिर मैं कैरेक्टर्स वैसे चेंज कर लूँगी. अगर मैं साउथ जा रही हूँ और मेरे कॉमेडी सेट में हमेशा कैरेक्टर्स होते हैं, एक्सेंट्स होते हैं अलग अलग, बंगाली या गुजराती या मारवाड़ी, पंजाबी, वॉट. तो अगर मैं साउथ चली गई तो आई विल ऐड साउथ कैरेक्टर्स, तो वो लोग कनेक्ट करते हैं. How many languages can you speak? Languages about 3 or 4, but accents I can do many. So like. तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल लेती हूँ. But how many accents can you speak? I can do quite a few. I can do Marathi, Gujarati, Punjabi, Bengali, South. Can we do one by one, like one line, one by one? Yeah, sure. नहीं? हाँ, क्यों नहीं? आप करो ना कुछ anything. मंजे मतलब क्या बोलने का है, मराठी में बोलने का है या मराठी एक्सेंट हो गया. देखो अभी मेरे पिक्चर आई ना, मेरे फर्स्ट पिक्चर आई थी उसमें मैंने मराठी किया था, किस किस को प्यार करूँ, उसमें मेरा चंपा कैरेक्टर था ना, तो उसमें मैंने एकदम ऐसा मराठी से कैरेक्टर मैंने ऐसा किया था, तो एकदम मस्त, लोगों को बहुत मजा आया था. फिर अभी हम लोग गुजरात जाते हैं ना, तो फिर गुजरात में तो गुजराती लोगों के ऐसे ही बात करना पड़ेगा, तो ऐसे बात करेंगे तो लोग कनेक्ट करेंगे ना.
तो उनको लगा कि यार अपना वाला है, अपनी बेंच है, हमारी बेंच है, तो बेंच स्टेज पे खड़ी होकर जोक्स बोल रही है ना, तो ऐसा उन लोगों को ऐसा कनेक्ट होता है. तो वो जरूरी है कि उधर जाओगे तो उधर गुजराती एक्सेंट. नाउ व्हेन यू गो टू द साउथ, यू नो, लाइक पीपल इन द साउथ इज वेरी लाइक स्वीट एंड दे टॉक लाइक दिस, यू नो, एंड थोड़ा डिफिकल्ट होता है हिंदी, थोड़ा बोलना का मुश्किल होता है, बट लिटिल ब्रोकन इंग्लिश, थोड़ा यू ऐड लिटिल बिट इंग्लिश एंड ऐड लिटिल बिट हिंदी एंड कम्युनिकेट, नो प्रॉब्लम. मैं तो कह रही हूँ तेरे से यार बहुत ज़्यादा हो गया, तेरी नाटक बहुत ज़्यादा हो रही है, हैं यार, मेरे को नहीं चलेगा ये खिटपिट बहुत ज़्यादा करा रहा है मेरे से यार, एक्सेंट और फिर ज़्यादा मिमिक्री भी करा रहा है. अपने ऐसे करके तुमने अपना पॉडकास्ट करा लिया यार, हैं ये करा रहा है तो अपना पॉडकास्ट के व्यूज़ बढ़ा रहा है तू. एक्चुअली इन बंगाली ट्राई कर रही हूँ मैं, यहाँ अटक गई. जो बांग्ला जो लोग है हमारा अलग है, हमारा बहुत, हम बोलता है तो फिर हमारा लड़का लड़की का मिक्स हो जाता है. हम जल पीता है, हम खाना खाता है, तो पीना जल वो सब खाना मिक्स हो जाता है. पर हम लोग ऐसा रसगुल्ला जैसे होता है वैसे स्वीट बोलता है, हमारा ऐसा एक्सेंट आता है. That's a good impersonation because I come from Calcutta. I am from Calcutta. ओरे बाबा, ताई तो ऐसे हम ऐसे ही बोलता है. ठीक बोलছো हैं, ঠিক বলছো হ্যাঁ. হ্যাঁ এমনি বলছি, একটু জানি. হ্যাঁ খুব জানো, একটু না খুব জানো. বাবা রে বাবা, কি দারুণ. This is wonderful. हाँ, तो ऐसे थोड़ा सीख के मेरे को बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बैठ के अभी. वाओ, थैंक यू. मेरे को दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये एक्सेंट जब आप कर लेते हो ना, लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारी भाषा बोल रही है. शी नोज आवर लैंग्वेज. नाउ वेरेवर आई गो पीपल जस्ट अज्यूम कि मैं कितनी बार गई हूँ गुजरात एंड दे आर लाइक गुजराती तो बोले छे, जेमी तो बहुत सारू बोले छे. एक्चुअली रियलिटी नहीं बोलूँ छू उतना, थोड़ा आता है मुझे, इतना भी नहीं आता, बट दे फील कि आता है. तो आप which is a good thing because they connect to you. मैंने पोल तो खोल दी मेरी, but the good thing is they believe that. तो उतना पावर है आपके परफॉर्मेंस में और जिस तरह से आप एक्सेंट कर रहे हो उसमें. My style of comedy is very different. Our style, like I said, लीवर घराना के. Who's your favorite comic in India? I love Abhishek Upmanyu. हाँ, he is so fun. हाँ, I love it यार. I love it because firstly तो कर लेते हैं फिर. हाँ, he's so funny. I think I love his take on things. वो खुद के बारे में काफी कुछ बोलते हैं. And I love that he laughs at himself. वो पूरा सेट जो लिस्प पर बनाया है, it was so funny. So इससे पहले कि कोई तीसरा आदमी बोले खुद ही एक्नॉलेज कर लो ना कि हाँ लिस्प है. हाँ लिस्प है, क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं ना. So good. I think he was hilarious, and I watched Akash Gupta ka. He was doing his one man show. वो tour कर रहे थे, and I watched him. Too good. I think that guy is something else. And you know what? He also does a little bit of, he does characters. Yeah. वो जो मैडम इधर, brother इधर, हाँ इधर. Excuse me. That is also a character. Yeah. And उस पे सबसे ज़्यादा so his there's a set called Sarojini. Yeah, Sarojini that's Nagar. why he does it, no? Wo salesman. So Sarojini Nagar mein that's how the salesmen talk. Yeah. Brother, idhar. Excuse me, brother. Yeah, he did that, and people went mad. That's what he does. It's crazy. Yeah. It's crazy so the good, way he does so it. good. But I feel like for our audience, na, when Yeah. you do characters, when you do some mimicry, or when you do some accents, it Yeah. always works. हमारी audience के लिए, the desi audience. We love it. It's like magic on stage. But this is sort of like, this is something, do you think this is something you've cracked now? Ki up characters is something that the audience likes. It's my thing. And also in terms of the audience. So one is to ki you know this is what your strong suit is. This is I want to play to my strength. Absolutely. And second is ki audience. अब audience तो आकाश गुप्ता भी देख रही है, अभिषेक उपन्यु भी देख रही है, गौरव कपूर भी देख रही है, गौरव गुप्ता भी देख रही है. Like people are watching, a lot of people. But I think, see, this is my dad has given me a very good understanding of our Indian audience. He has this is interesting. Yeah, 40 years of doing stand up in front of for our people all over the world, and he's realized कि जब आप ऐसे full देते हो ना, मतलब like full, when he goes on stage, he dances, he does his acts, he does his mimicries, he does his accents, he does various characters, and he creates. This is the feedback people have given. ऐसा लगता है कि हमने एक पूरी 3 घंटे की बॉलीवुड फिल्म देखी एक
एक इंसान को लेके एक इंसान के हाँ थ्रू right. वी वॉच्ड एन एंटायर फिल्म एंड ही इज लाइक लोग पागल हो जाते हैं वो, And क्योंकि that वो is मैजिक such आप a- क्रिएट करते that हो. is such a great compliment because he Yeah. does magic on screen. Yeah, and he's like, that magic you have to create, and whether it falls in the stand-up category or not, people I think these days the comics say कि ये stand-up अलग है, वो stand-up है नहीं. जैसे जब मैंने मेरा शो शुरू किया था ना, so this जहाँ पर हम the portal where my tickets we sell our tickets, उस पे उन्होंने बोला this is not a stand-up show, this is a different show. आप कोई भी कैटेगरी में डाल दो, वो आई एम स्टैंडिंग अलोन एंड परफॉर्मिंग ना, तो वो स्टैंड अप ही हुआ ना. भले मैं डांस करूँ या गाऊँ या जो भी, मैं हंसा ही रही हूँ लोगों को. आई विल यूज़ ऑल माई स्किल्स. सो माई डैड हैज़ बिन डूइंग दैट. ही क्रिएट्स दैट एंटायर मैजिक ऑन स्टेज जहाँ वो सब कुछ कर रहे हैं. ही इज पुटिंग ऑल हिज स्किल्स टुगेदर एंड ही नोज दैट दिस वर्क्स फॉर आवर इंडियन ऑडियंस. Right. ये right. बिकता है. आप कुछ भी कर लो, यू नो, द एंटायर फैमिली कैन कम एंड वॉच यू and they have a blast. And he Yeah. told me that I can see similar skills in you, I can see similar talents in you. So he said use that and don't be afraid to. Don't feel like मैं मेरे डैड की कॉपी कर रही हूँ. नहीं, तुम नहीं कर रही हो, तुम अपना ही कर रही हो. But you have those skills, you have that skill set ना. So I'm using my, like you said, using my strengths to my advantage. I go on stage, I'm doing my singing, हंसा कर, मैं हंसा रही हूँ लोगों को, Right. बट मैं प्रॉपर गायकी दे रही हूँ. तो वो एक व्हेन आई सिंग ऑन स्टेज एज अ पार्ट ऑफ माई म्यूजिकल एक्ट, माई स्टैंड अप एक्ट, दे गो लाइक, दे मेस्मराइज्ड. ये गाती है यार, ये वाह अच्छा गाती है. तो आपने वहाँ मैजिक क्रिएट कर लिया, उसमें मैंने डांस ऐड कर लिया. यार उसने किया यार, सेम डांस किया उसकी तरह. So overall performance and it Yeah. lifts the entire It does. performance. It does. And it works for our Indian audiences. It does. And I'm not saying कि it works for all age groups. Right. Especially. अब मेरा जो show है, there was a 60-year-old lady with a 14-year-old teenager. Ah. So you see, it's for all age groups. And I'm proud of the fact that, you know, for our shows, हमारे shows पर, an entire family can watch together. You're not to be awkward. कि मैंने कुछ स्टेज पर बोल दिया, यू नॉट लाइक अरे क्या बोल दिया. नहीं, इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट शो एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट. यू नो, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू कॉमेडी वेयर आई फील लाइक यार ईयरफोन डाल के नहीं सुनना पड़े. खुला सुनो. हाँ. हाँ, Correct. आई वांटेड टू दैट काइंड ऑफ correct, कॉमेडी correct. कि मेरी पूरी फैमिली देख सके, यू नो, ऑन टीवी और वेयरएवर ऑन स्टेज. आई डोंट हैव टू बी, ऑडियंस डजंट हैव टू शाई अवे. एंड What's the weirdest thing an audience member has told you after a show? weirdest Or say like an interesting anecdote from after the show कि ये कर दिया fan ने, या something weird or something interesting that because there will be, I'm sure there are so many people, oh such a lovely show, Yeah. and I saw one of your show reels. I was like, oh this is a great show, ये वो, Yeah. people got emotional as well. Yeah. So I'm sure that happens. एक लेडी But ने give me मुझे a बोला, weird. वियर्ड तो नहीं, आई मीन इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग ओनली. Okay. शी केम एंड शी वाज रियली अनवेल. Okay. शी इज अ फैमिली फ्रेंड्स मदर. शी वाज वेरी अनवेल. तो वो कुछ 12 दिन बाद घर से बाहर निकली थी. एंड दैट फ्रेंड ऑफ अस, शी सेड कि मेरी मम्मी को कॉमेडी शो के लिए लेकर आऊँगी तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा. तो वो ना बेचारी, शी हैड लाइक अ शॉल बांधा हुआ था, उन्होंने लपेटा हुआ था, एंड शी वाज अनवेल. आई कुड सी हर फिजिकली नॉट फीलिंग टू वेल. शो के बाद जब मैं मिलने गई उनसे, एंड शी सेड बेटा मैं 12 दिन बाद घर से बाहर निकली हूँ. एंड शी सेड मुझे ऐसा लगता है आज मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Oh. एंड हर हस्बैंड गेव मी, ऑल्सो एन एल्डरली मैन, ही गेव मी आशीर्वाद से, बेटा तूने इसका खून बढ़ा दिया, थैंक यू, तूने ये किया. How do you So, take such feedback? आई मीन एट दैट मोमेंट आई गॉट चिल्स. Yeah. मेरे रोंगटे Yeah. खड़े हो गए. बट एट द सेम टाइम आई वॉन्टेड टू फॉरगेट इट. यू नो वाई? आई डिडंट वांटेड टू गो अप माई हेड. Yeah. Yeah. आई वाज लाइक आई रिमेंबर दिस, बट मैं नहीं जाने दूंगी यहाँ तक आया, ओके, यहाँ तक नहीं जाना है. सो आई वॉन्टेड टू जस्ट लीव इट एट दैट मोमेंट. दिस इज गुड फॉर दिस मोमेंट, आई विल एन्जॉय इट नाउ एंड दैट्स इट. आई गो बैक टू वर्किंग एंड that's how we function. I don't want to take everything very, all of this too इतना काम seriously. क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत मज़ा आता है यार, रियली मुझे बहुत मज़ा आता जेमी, है. अगर मैं पैसे हटा दूं, हाँ, मैं पैसे हटा दूं तब भी equation मैं से, तब करूँगी. भी यही करोगे? हाँ, बिकॉज कोविड के टाइम पे कोई पैसे नहीं थे. इनफैक्ट आई थॉट कि मेरा करियर ख़त्म हो गया था. 2018 पे मुझे काम आना बंद हो गया था ऑलमोस्ट. एंड
उस टाइम पे टीवी पर कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे थे जो सिमिलर थे, तो मैं कर नहीं रही थी. एंड माई डैड्स लाइक मत करो, तुम सेम मत करो, तुम टाइप कास्ट हो जाओगी, वैसे ही हो रही हो, स्टीरियोटाइप हो रही हो, मत करो. और ना बोलने में ज़्यादा ताकत है, सो से नो. सो आई वाज लाइक ओके, नहीं करना है. एंड आई वाज वेटिंग एंड आई वाज डूइंग लाइक 1 or 2 jobs a year which was getting me enough money. So I was like okay यार, वैसे भी आई एम स्टेइंग विद माई पेरेंट्स, मुझे कौन सा इतना बड़ा खर्चा है, सो इट्स ओके. So I was not doing much work and I thought my career was just like going down. Then COVID happened. तो I said अभी तो भाई pack up. But then I realized कि मेरे Instagram पे कुछ 100K followers हैं. They are following me because they find me funny. They think कि यार इस लड़की में कुछ है. And जो this भी is है pre-COVID. Pre-COVID. Okay. जो भी है, शायद जॉनी लीवर की बेटी है, हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं. ओके, हो सकता है. ठीक है, ओके. हाँ, शायद हमने इसको कॉमेडी सर्कस पे देखा, मुझे ठीक लगी, फ़नी लगी, तब हम फॉलो कर रहे हैं. ओके. तो मेरे 100K थे. देन आई थॉट कि यार ये लोग ने कुछ तो सोच करके मुझे फॉलो किया है, तो मुझे इनको तो एंटरटेन करना होगा, वेदर कोविड आए या जो भी हो, पैसे मिले ना मिले, इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है. Correct. That's how I started making content. I was like, I'll make content just for my entertainment. मेरा दिमाग खराब ना हो जाए वरना घर बैठे बैठे. I'll go crazy because I love working. Right. So I was like, let me do this, and then I started making content. They enjoyed. I was enjoying. I felt like I'm alive again. And so I was not making money at that time. But I was having the best time because I was experimenting. जो मैंने नहीं किया था पहले, वो सारी चीज़ें मैं कर रही थी. मैं गाने के वीडियोस बना रही थी, सिंगिंग कवर्स बना रही थी. आई वॉज मेकिंग पैरोडीज ऑफ दैट. कोविड का एक सॉन्ग मैंने बनाया था जो वाई दिस कोलावेरी पे मैंने पैरोडी बनाई थी, अबाउट वाई दिस कोविड समथिंग कोरोना वायरस, ऐसा कुछ बनाया था मैंने. और पूरा गाना हमने विद अ बैंड वी रिकॉर्डेड एंड दैट वेंट वायरल. इट वॉज इन द न्यूज़ कि जेमी लीवर ने बनाया है. Oh yeah. Yes, तो yes. वो वीडियो वायरल हो गया. मेरे सारे वीडियोस वायरल होने लगे. फराह खान एट होम टीचिंग डांस ऑन जूम, क्योंकि कोविड लग गया है, तो लॉकडाउन लग गया है. सो शी इज़ डूइंग दैट. उषा उत्तुप जी घर में कॉन्सर्ट कर रही हैं, क्योंकि बाहर कॉन्सर्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोविड हो गया है. तो ऐसा सब आई वाज मेकिंग कंटेंट एंड पीपल वर गोइंग क्रेजी कि ये क्या, आशा जी लोगों को एडवाइस दे रही है घर बैठे बैठे कैसे आपको सेफ रहना चाहिए. तो वो मेरा वीडियो वायरल हो गया. फिर आशा जी आज के गानों पर कमेंट करिए, वो वीडियो वायरल हो गया. सोनम कपूर घर बैठे बैठे क्या कर रही है. मेरे सारे वीडियोस वायरल होने लग गए और मुझे इतना मज़ा आने लग गया बिकॉज इससे पहले मैंने इतना एक्सपेरिमेंट किया भी नहीं था. करेक्ट. इतने कैरेक्टर्स मैंने नहीं किए थे और इतने कैरेक्टर्स मुझे टीवी वाले करा भी नहीं रहे थे. उनको बड़ा रिस्क लग रहा था. दे वर ओनली मेकिंग मी टू आशा जी. तो आई थिंक मेरा खुद का भी वो बढ़ गया. लाइक आई सॉ कि मुझ में कितना पोटेंशियल है. सो आई स्ट्रेच्ड माई सेल्फ एंड देन धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग ब्रांड डील्स आफ्टर दैट. सो आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ ग्रेट. मुझे घर से वीडियो बनाना है जो आधे घंटे में बन सकता है एंड आई एम मेकिंग गुड मनी, मोर देन व्हाट आई वुड टीवी पे. तो ऐसे ऐसे करते करते 1 million प्लस हो गए अभी फॉलोअर्स एंड आई हैव मेड मोर मनी पोस्ट कोविड देन एवर बिफोर. Wonderful. And I ask you a personal question. I mean, Yeah, choose go not on. to answer. And I take the liberty because I feel कि उससे maybe I need those kind of conversations because I think कहीं ना कहीं वो बातें हो नहीं रही है. Yeah. कितने पैसे बनाने? Somebody told me the other day, only my friend, एक लिमिट रख ले अपने लिए कि इतने बनाने, उसके बाद जो मिलेगा वो बोनस, बट यहाँ तक तुझे मेहनत करनी है. मैंने वो सोचा नहीं अभी तक. आई थिंक पैसा इज नॉट माई, नहीं यार मेरे लिए पैसा इज नॉट प्रायोरिटी. मुझे अपने आप को प्रूव ही करना है. क्या प्रूव करना है? फर्स्टली अभी आई फील लाइक आई एम ऑलमोस्ट देयर बिकॉज पीपल आर लाइक ओके Jamie Lever, we are her fans. Not because she is so-and-so's daughter or she's a Lever. No, we are Jamie's fans. And जहाँ भी मेरे डैड जाते हैं तो लोग बोलते हैं सर हम आपके फ़ैन हैं बट वी लव जेमी. तो आई एम गेटिंग देयर. लाइक आई फील लाइक आई एम क्लोज टू वॉट आई रियली वॉन्टेड इन लाइफ, टू जस्ट हैव माई ओन आइडेंटिटी. वो एक कर लिया है मैंने. तो आई फील लाइक वो था मेरा गोल लाइफ का. अब लोग बोलते हैं वो टाइम आएगा जब पीपल विल से जेमी के डैड जा रहे हैं. आई थिंक वो मेरा नेक्स्ट, वो क्रॉस करना है वहाँ तक. तो उसके लिए टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा. बिकॉज जॉनी लीवर इज जॉनी लीवर. आई डोंट हैव टू रिमूव हिज नेम फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. नहीं, आई वॉन्ट हिम टू बी वेरी प्राउड ऑफ मी एंड आई वॉन्ट हिम टू बी वेरी प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स एंड वॉट एवर आई हैव डन. आई थिंक मेरा गोल वही है, टू जस्ट मेक हिम
for him to be proud of me. And What is your take on privilege? ठीक है, I mean, obviously I have. No, I asked this question for a very specific reason, and the meaning has been misconstrued Oh, for yes. a very Yes. long time Yes. now. Yes. And I want people to share their stories Yeah. in terms of privilege. कि यार ये तो वो है, ये तो ये है. What's your take? I heard a recent interview शाहिद कपूर का, and he said कि कैरेक्टर आर्टिस्ट के बच्चों को नहीं होता है कुछ, नहीं मिला कोई नहीं है कोई एडवांटेज, वो सिर्फ ए लिस्टर्स के लिए है, वो सिर्फ बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स के बच्चों के लिए है. एंड आई सॉर्ट ऑफ अग्री विथ हिम. I do agree with him, because even though my father has been in the industry of 40 plus years, कितने 400 plus movies उन्होंने किए हैं, काउंट भी नहीं है. But I was not given ऐसा कोई कि भाई आइए हम आपको लॉन्च करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए. Nobody waited for me. I never got calls or never got ऐसे jobs without. I had to audition for everything. I had to audition for everything. I've been rejected from auditions. I have walked in a room where, okay, Shanu Sharma, I called her so many times to meet her. I sat with her. I did an interview with her in the car because she was really busy. She didn't give me time कि आओ बैठो जो Johnny G. Yes, she was very happy to meet me. She treated me very well. Yes, because she is my dad's fan. But मैंने किया जो सब कर रहे थे. I'll cut you here. Have you been offered a role because you're Johnny Lever's daughter and you've rejected it, saying just because I am Johnny Lever's daughter, don't give me a role? No. I got a role when I had done enough work, and Abbas Mastan ji saw my work, and then they offered me the role. Also knowing that she is Johnny Lever's daughter, they were like, ये काम तो अच्छा ही कर रही है. It's a bonus. काम तो अच्छा ही कर रही है और पक्का काम करेगी बिकॉज जॉनी जी की बेटी है और काम हम देख रहे हैं. मेरा वीडियो उनके फ़ोन पर गया था एंड दे लव्ड माई वर्क. जब उन्होंने मेरे साथ मीटिंग की फॉर दैट फर्स्ट एक्टिंग जॉब, फर्स्ट फिल्म जॉब दैट आई गॉट, उनसे आया मुझे, उन्होंने मेरे वीडियो की बात की. जैमी तुमने क्या वीडियो बनाया यार, तुमने वो गाना गाया, वो इतना मस्त गाया, तुमने उसमें आशा जी की मिमिक्री की, वो बहुत 10 मिनट तो वो मेरे वीडियो के बारे में बात करते. दे वाज सो इम्प्रेस्ड. और वो रोल मेरे लिए लिखा हुआ था बिकॉज दे नो आई कुड डू इट. तो ऐसा नहीं बिकॉज आई एम सो एंड सोज डॉटर मुझे मिला, नहीं, वो उन्होंने मेरा काम देखा. राइट. एंड अनुकल भाई जो लिख रहे थे वो स्क्रिप्ट, ही हैड सीन मी ऑन कॉमेडी सर्कस, तो ही न्यू कि मैं मराठी कैरेक्टर कर सकती हूँ. तो उन्होंने बोला मैं तुमको दिमाग में रख के मैंने लिखा ये रोल. तो मुझे ऐसा कोई काम, नेवर आई गॉट वर्क बिकॉज ऑफ माई डैड, नेवर. Coming back to privilege. Yes, I mean, growing up, my father has taken care of me, went to the best schools. वो privilege है. अच्छी गाड़ियों में हम घूमे, and nothing wrong with that. My father could provide. He wanted to make sure that मेरे बच्चों को यार best education मिले and comfort मिले, and we got all of that. So we went, we did good holidays, we got everything we asked for. So that kind of privilege. But I don't think I had any privilege in the profession so much. Like I said, coming back to that instant, that meeting with Shanu Sharma, I did that interview with her. She asked me to audition, and I thought she's asking me to audition because she's thoda I had advantage of being so and so's daughter. I walked into the room, there were 30 other girls wearing the same costume as me, who looked the same exactly like me, same hair, same color. So then I was like, okay, I'm no different. Yeah. I don't have any privilege, I don't have any advantage here. And they were shocked, equally shocked to see me. They were like, अरे जेमी ने भी यही कपड़े पहने हमारे जैसे, बट ये तो जॉन लीवर की बेटी है. कोई फ़र्क नहीं था. तो आई डोंट थिंक सो. कमिंग बैक टू दैट इंटरव्यू, लाइक आई सेड, वो शाहिद कपूर जी's इंटरव्यू, आई एग्री. ऐसा मुझे कोई मेरे लिए कोई, and I'm glad you opened up about this because this is important. I've never spoken about it, but I felt a little bit awkward के, but then I got a reality check कि ये है और मैं लड़ूंगी. I have to keep my ego aside. I could be John Lever's daughter, and I've been given so much, like I have the privilege, yes, but ये भी reality है. Correct. I stand here. I'm going to start from here. So yeah, I've auditioned. I've gone and spoken to so many casting directors जिनको मैंने personally call किया है. सर मैं जेमी हूँ, मैं कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे आप एक मीटिंग करूँ मैं आपके साथ. जोगी जी का big casting director, went to see him. He spoke to me for 5 minutes. But नहीं मिला मुझे काम उस टाइम पे, नहीं था कुछ भी, जो भी मतलब, but he was kind enough to meet me. But नहीं मिला मुझे काम.
उन्होंने मेरा काम देखा, फिर जोगी जी ने मुझे स्पेशली बुलाया एक वेब सीरीज़ के लिए बहुत सालों बाद. एंड ही सेड जेमी तुम्हारे वीडियोस में देखता हूँ, मुझे दिखता है कि तुम जेन्युइनली मेहनत करना चाह रही हो, तुम जेन्युइनली यहाँ मतलब तुम्हारी हाँ एक वो दिखती है, पैशन दिखता है तुम्हारा और वो बहुत प्योर है, इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि तुम ये करो प्रोजेक्ट. ही ऑफर्ड मी वन जॉब. खैर वो हो नहीं पाया, बट मैं एक बात बता रही हूँ. तो एवरीबडी हुज रीच्ड आउट टू मी ना, दे हैव सीन माय प्रीवियस बट आई थिंक ये ना जेमी, आई थिंक वो स्पाइरल करता है when you meet certain people, maybe उस टाइम जॉब ना मिले या उस टाइम वो काम ना मिले, but they remember you. They remember, maybe yeah. They're like हाँ उस टाइम उसको सोचा था कि करेंगे बट नहीं हो पाया, तो maybe ऐसा भी हो later. सकता है. बट a lot of people जिनसे भी मैं मिली हूँ ना, जिन्होंने मुझे काम दिया है, उन्होंने हमेशा मेरे प्रीवियस काम का जिक्र किया है और अप्रिशिएट किया है. यार तुम्हारा वीडियो बहुत अच्छा है, या तुम्हारा वो बहुत अच्छा है, या उस फिल्म में तुमने अच्छा किया, या तुमने ऑडिशन दिया. माई फिल्म भूत पुलिस, वेर आई गॉट दैट द रोल वेर आई वॉज प्लेइंग दिस कैरेक्टर विलेजर आई वॉज प्लेइंग, हर नेम वॉज लता इन दैट फिल्म. वो रमेश सुरानी जी की फिल्म है. रमेश सुरानी जी के साथ मेरे डैड ने कितनी फिल्में की हैं, एंड ही नोज मी. बचपन से उन्होंने मुझे देखा है यहाँ वहाँ. डैडी के साथ अगर मैं कहीं गई हूँ, ही सीन मी. बट उस बेसिस पे मुझे फिल्म नहीं मिली. अल्टीमेटली मैंने पवन कृपलानी के लिए ऑडिशन किया, उस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन किया जिसके लिए द 5-6 अदर विमेन हैड ऑडिशनड. किसी का क्लिक नहीं हुआ, एंड दे सॉ माई टेप एंड दे लव्ड इट, एंड इंस्टेंटली आई वाज ऑफर्ड द रोल. तो I have cracked like all the work that I've gotten is because of auditions that I've cracked. So I've failed also many a times, and some people have directly asked me कि हमको we want you only because we like your work. Like Crack, the film with Vidyut Jambal, I got because the director said, Jamie, I only want you. That's it for this role. If I want a girl to play it, and that you're the person. That's it. Give me something controversial before you go. Oh gosh. Oh gosh. We don't want to end on a serious note. We want to end on a fun note. Controversial नहीं है. It's a very sweet thing that happened. The very fact that you start with controversial नहीं है. No, it's a very sweet thing. Controversial ही नहीं है बिल्कुल. चलो ठीक है. नहीं, I always wanted to do an interview with Asha ji. Like Asha versus Asha kind of thing, you know. So वो कभी हो नहीं पाया. I was hosting the red carpet for this. My very first award that I hosted red carpet for was Jima Awards, music awards थे. And they told me I was playing a character called Usha Ben. कुछ गुजराती कैरेक्टर, और हमने कुछ क्रिएट किया था कि उषा बेन अपने ऑर्केस्ट्रा पार्टी कर रही है और वो एक एक जैसे गेस्ट आ रहे हैं, उनको वो ऑडिशन ले रही है कि आप क्या करोगे मेरे ऑर्केस्ट्रा पार्टी में. ऐसा कुछ हमने कूल सा बनाया था सिचुएशन. और उन्होंने मुझे बोला था कि आशा जी भी आई हुई हैं, सो एट सम पॉइंट हम करेंगे इंटरव्यू विथ यू एंड हर 1-on-1, और तब तुम आशा जी की मिमिक्री करना और द रियल आशा, ऐसा कुछ करेंगे. तो बहुत ही सैड था कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और इवेंट बहुत लेट चला था, बहुत देर से ख़त्म हुआ. तो आई सॉ हर लीविंग मेरे सामने से, तो मुझे बहुत ही लाइक ऐसे सैड फील हुआ कि एंड आई वाज लाइक आई ओनली विश कि अगर हम ये कर पाते तो थोड़ा सा. उनको पता भी नहीं था एक्चुअली, वो जेन्युइनली निकल गई. आई सॉ हर लीव विद पद्मिनी कोलपरी जी एंड शी दे लेफ्ट टुगेदर, एंड आई वाज लाइक आई विश 2 मिनट रुक जाती, हम वो इंटरव्यू कर लेते. तो वहाँ नहीं हो पाया. फिर उसके बाद फिर हमने कोशिश की कि यार कैसे करके इफ़ यू कैन डू दैट इंटरव्यू. मेरी तमन्ना है टू वॉच हर. आई एम जेन्युइनली अ फैन. आई हैव गॉन एंड वॉच्ड हर लाइव शो ऑल्सो एट चमोकनंदा. जस्ट वांटेड टू सी एंड इट्स अ पार्ट ऑफ माई स्टडी. राइट. और क्या एट दिस एज व्हाट इज शी डूइंग. Like I want to see, now she's celebrating her 90th. But I wanted to see like what is she doing on stage? क्या stamina है? How is she really keeping the audience going? Right. So it was a part of my study. So I was trying. Recently at some party, some musical event था I think. So my father was there and Asha ji happened to be there. तो फिर I think my dad met her and काफ़ी सारे guests हैं. They were like, अरे आशा जी, जॉनी जी की बेटी जेमी तो बहुत अच्छा करती है, आपकी मिमिक्री करती है ऐसे. सो शी सेड उसको बोलो मेरी मिमिक्री ना करे, मेरे गाने गाए. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी sweet thing that happened, but which also tells me that she's seen my videos. Yeah. And I have spoken to Lata Mangeshkar ji on the phone, and she told me that हाँ तुम मेरी बहन की करती हो, अच्छा करती हो, लेकिन तुम अपने पिताजी की बहुत अच्छा करते हो. She liked my mimicry of my dad.
So yeah, that is the sweet thing that happened. It's not controversial. Controversial चाहिए था ना भाई. ऐसा Sweet नहीं तो है मिल मेरे गया. पास यार. No, honestly, touch wood, I have to say, हाँ. all the mimicries that I've done, nobody has ever felt attacked or hurt or they felt offended by my performance. Nobody. Even अभी हमने एक वीडियो बनाया, I collaborated with another content creator. अभिजीत के पहले सृष्टि करके है, शी मिमिक्स नेहा कक्कर. तो हमने एक वीडियो बनाया था विद आशा जी एंड नेहा कक्कर टॉकिंग. तो एंड आशा जी is basically taking Neha's case in that video. Okay. But Neha Kakkar herself has commented on that video saying you guys are too good. So nobody has taken offense, and I feel really lucky that people really enjoy my work, and it's also so nice that वो कितने sporting हैं, उनका sense of humor कितना होगा कि they can laugh at themselves. Farah ji has always supported me, always. She's loved. Farah ma'am has always messaged me. She comments on my videos, she DMs me and says this is too good, and she loves it. So I really have nothing to say. ऐसा कोई controversial point आया ही नहीं in my career so far, touch wood, and thank God for that. People have been so supportive. I've spoken to Rekha ji. She's called me and she's like, how do you do it? Can you I know I can't mimic Rekha ji. She spoke to me in Telugu. She's a South Indian and spoke to me in Telugu, and she's like, how did you do it? कैसे किया तुमने? मेकअप कौन करता है तुम्हारा? साड़ी किसने पहनाई तुम्हें? And I said, मैम मैंने खुद ही किया. हम वीडियोस बना रहे थे घर पे. And कैसे किया? इतना अच्छा किया बेटा, so good, I'm so proud of you. And she spoke to me in Telugu and she was very happy. Sonu Nigam ji called me. He spoke to me. He's like, यार जिमी बहुत अच्छा किया तुमने. वो वाला गाना तुमने उसमें आशा जी का तुमने किया, बहुत मजा आया. कैसे करते तुम प्रैक्टिस कैसे? He loved it. I love this. Usha Uttup ji called me, Jamie my darling, at 7 a.m. in the morning. कौन है? I don't have these people's numbers saved. Jamie, I love you. I said, कौन है? Sorry ma'am, who is this? This is Usha. Do please mimic me my darling. Please mimic me. And then I made a Usha ji ka video. She was like, please, मेरी mimicry करो. So I feel so blessed and I have so much gratitude. Have you gotten a request that you don't want to do? From the celebrity directly? Yeah. No, ऐसा जिन्होंने बोला है उनकी तो मैंने मेरे को लग रहा है कुछ तो है. नहीं तो नाम है. सच्ची नहीं है. सच्ची नहीं है. I don't think. No, I can't recall. ऐसा कोई Okay. मैंने because I did this way or you see my body language. No, I honestly can't recall. I can't recall, but there are so many more people that I'd love to mimic, especially आज की जो actresses हैं. Like I would love to try. Alia Bhatt I tried. इतना वो नहीं है, accurate नहीं आ रहा है. मैंने कोशिश किया, नहीं आया. But फिर भी अभी क्या आ रहा है? Like I really want to try Sara Ali Khan. क्योंकि वो जो बात करती ऐसे करते दांत, तुम मुझे परेशान करने लगे हो. Have you seen Murder Mubarak है? Have you seen? No. Oh my God! she has this, it's this funny thing she does with her teacher. वो बंद ही नहीं होते दांत उसके, ऐसे ही होते. So I'm working on that. I'd love to try that. कुछ अलग है. What other characters you're working on for your audience? What can they expect from Jamie? I would like to mimic even Janhvi Kapoor because I think it's a little close to Sridevi ji's voice. Because I mimic Sridevi ji and she talks like this, जैसे English था तो उसमें भी ऐसे बात करते थे और मुझे लगता है जानवी का भी थोड़ा close है. So I would like to try Janhvi also someday. She is my Bal Kalakar. No, actually, she is not. Anil Kapoor is Bal Kalakar. So anyway, just the new actresses I'd like to be. Ananya also. Hi, I'm Ananya Pandey, and I can touch my tongue to my nose. मैं ये कर सकती हूँ. And I think 3-4 actresses भी ऐसी ही बात करती हैं ना, और भी जो. Do you feel like this is never ending? But just to this like. Never ending. Do you pick certain characters basis the tone they have? So similar range. Yeah, and I mean जितना unique होगा उतना it's easy for us to mimic.
And I think back in the day, like Hema ji had such a unique one. Nah, वो voice इतना unique था. It was easier to mimic. And now Kangana Ranaut is easy to Do mimic. you also do male characters? No, I can't because when women do male characters, ना नहीं आता है accurately. Okay. नहीं होता है. I've tried it Okay. and it doesn't work because our vocal cords are not Yeah. इतना भी आप bass नहीं कर सकते. I'm sure people have attempted it, but I've tried it and it's very like people will just listen to you because you're really trying, like, but it's not going to be proper mimicry. You're speaking about Kangana. हाँ, so Kangana Ranaut also has a very peculiar voice texture. So it's easy to mimic. तो जितना unique voice quality होगा, that it's easier like that to catch that. बस ऐसा ही है. Wonderful. Thank you so much, Jamie, for being on the show. This has Thank been you a so lot much. of fun. Yes, Please same. ask our subscribers to follow the channel and tell us what you felt being on the show, how you felt being on the show. In going, Oh my God. क्योंकि जाते जाते we would want you to mimic Mr. Johnny Lever. Oh, You see? मेरे को मजा आ गया बाबा, इधर आके एकदम बच्चा हो गया बाबा, मजा आ गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े हो गए. हाँ, यही था. Fantastic. Ask our subscribers to follow the channel and आप बता दो कैसा लगा, how you felt being on the show. Well Hi done. guys, this is Jamie and I really enjoyed being on this podcast. Yeah. बहुत मज़ा आया, हमने बहुत सारी बातें की एंड दिल खोल करके बातें की हैं मैंने आज. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट. हाँ, मेरे लिए कुछ अच्छे 2 शब्द. Thank you. Wonderful. Thank you so much, guys, for watching. We will link Jamie's social media channels and everything in the description. Please go check her out. Follow her if you're not already following her. I don't Why know aren't you? why you're not Why? following. Follow. Just follow right now. And thank you so much for watching the show. Comment down your favorite part in the comment section. Follow us on subscribe to our channel Deepak Parekh. We've come up with a new channel called Deepak Parekh Clips, where we post short form content on that channel. So please follow that as well. And yeah, thank you so much. It's a wrap. See you next Friday at 6 p.m. Yay! Thank you. Thank you.